Today, the topic that we are going to cover is present value of an annuity. Okay, so this is the last topic that we are going to cover, present value of an annuity. The present value of an annuity is the total present value of all of your future series of payments given a rate of interest or a discount rate. Now, what does this means? So this is what here what you have to do. You have to calculate the present value of all future series of payments. So whatever payments you are going to receive in future, उसका आज का present value हमें calculate करना है at the given rate, or it is also called as a discounting rate. Now what does that means? Let us try to understand that with the help of an example. You have won a lottery. The lottery officials offers you two choices for collecting your winnings. You may take 4 payments of rupees 2,25,000 over the next 4 years, or you may take a one-time payment of rupees 7,50,000 today. Which would you take if the discounting rate is 10%? Assume that amount is received at the end of the year. Will your decision change if the amount is received at the beginning of the year? So this is what they have asked. Now let us understand this question first. हमने लॉटरी जीता है. Lottery official has given us two choice. First choice is 2,25,000 over next 4 years. तो डियर स्टूडेंट्स, एक लेमैन क्या सोचेगा? 2,25,000 4 साल में उसे मिलने वाला है. सो 2,25,000 इंटू अगर 4 करेंगे 4 साल में मिलने वाला है. सो ही विल बी सेइंग कि मुझे तो 9 लाख रुपीस मिल रहा है अगर मैं 2,25,000 लूं तो. लेकिन आज अगर मैं वन टाइम सेटलमेंट करूंगा तो मुझे तो खाली 7,50,000 मिल रहा है. ओके, सो दे मे कंसिडर, लेमैन में कंसिडर कि 2,25,000 इज अ बेटर चॉइस क्योंकि उससे मुझे ज्यादा मिल रहा है एंड नॉट 7,50,000. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वी एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखा है. हमको पता है ये 2,25,000 हमको नेक्स्ट 4 इयर्स में मिलने वाला है. सो आज का प्रेजेंट वैल्यू उसका 9 lakhs का नहीं है. आज का प्रेजेंट वैल्यू उसका कितना है? दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, और उसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी. इसे एन्यूटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2,25,000 एक सिंगल स्ट्रोक में नहीं मिलने वाला है. 2,25,000 ओवर नेक्स्ट 4 इयर्स मिलने वाला है. सो इट इज एन एन्यूटी का एग्जांपल. तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसको 7,50,000 के साथ कंपेयर कर सके एंड देन वी कैन टेक अ वाइज डिसीजन as to whether 2,25,000 over next 4 years एक्सेप्ट करना है कि 7,50,000 एट अ स्ट्रोक लेना है फ्रॉम दैट लॉटरी कंपनी. ठीक है, तो चलो देखते हैं. Which would you take if the discounting rate is 10%? Assume that the amount is received at the end of the year. So again there are two choices, dear students. Amount is received at the end of the year or amount is received at the beginning of the year. Whenever amount is received at the end of the year, हमें पता है हम उसको बोलते हैं ordinary annuity. ये हमने future value में भी सीखा था. So that is called as ordinary annuity. And if the amount is received at the beginning of the year, उसे कहेंगे annuity due. ठीक है, so let us solve this. But before solving this, उसका formulas check करते हैं कि what are the formulas of ordinary annuity and annuity due under this method. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल्स टू पीएमटी. पीएमटी आर द रेगुलर पेमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव ओवर द इयर्स. ब्रैकेट में 1 minus 1 upon 1 plus r the whole raised to n upon r, ब्रैकेट क्लोज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. और यही फॉर्मूला एन्युटी ड्यू का है. क्या है? सेम फॉर्मूला है, खाली इतना ही डिफरेंस है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 1 plus r से. ये हमने फ्यूचर वैल्यू में भी देखा था. व्हेनेवर वी कैलकुलेट ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, हम उसको 1 plus r से मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ टेबल मेथड क्या है? सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू पीएमटी इनटू ये पूरा जो ब्रैकेट का कैलकुलेशन है दैट इज गिवन बाय द टेबल वैल्यू. तो टेबल वैल्यू में हमें कौन सा टेबल देखना है? सो टेबल देखना है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का टेबल देखना है. एंड द सेम ओवर हियर व्हेन इट कम्स टू एन्युटी ड्यू, वही टेबल में देखेंगे लेकिन जो वैल्यू आएगा उसको हमको एडिशनली 1 plus r से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली ये सॉल्व करके चेक करते हैं कि हाउ डज इट वर्क्स. तो सबसे पहला एज्यूम क्या करना है
कि द अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ द ईयर का मतलब वी विल बी एज्यूमिंग दैट एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी. चलो, सो इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी अगर एंड ऑफ द ईयर में मिल रहा है. सो इफ इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी देन उसका फॉर्मूला कॉपी डाउन करता हूं. Just a second. Okay, so this is the formula for ordinary annuity, and according to the formula, PMT for this sum is 2,25,000. So 2,25,000 they are going to offer me for the coming 4 years. ठीक है, ब्रैकेट में 1 minus 1 upon 1 plus R. Now R in my example is rate of interest is 10%. So R is 10%. So I am writing 0.1. और ये कोई मंथली या क्वार्टरली वाला कंपाउंडिंग नहीं है. So I will be taking 0.1 as it is. Raised to n. N is 4 years. Up the whole upon R. So it is 0.1. Bracket close. This is ordinary annuity का formula. So this is equals to 2,25,000 into. Now how to solve this? तो क्या करेंगे? 1 minus 1 upon 1.1 the whole raised to 4 होगा ये upon 0.1. अब ये ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं. चलो, सो दिस इज 2,25,000 द होल इनटू कितना आएगा आंसर, तो एक ही स्ट्रोक में हम निकालते हैं. तो हाउ टू यूज दिस? तो सबसे पहला हम क्या कर रहे हैं, ये 1 डिवाइड बाय 1.1 द होल रेज टू 4 को हम कैलसी में सॉल्व कर रहे हैं. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? तो 1 डिवाइड बाय 1.1 ये एक बार कर दिया इज इक्वल्स टू, ओके, ये एक टाइम हो गया, वापस इज इक्वल्स टू 2 टाइम इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू. सो 4 टाइम्स आपको इक्वल्स टू इंसर्ट करना है. तो कैलसी आंसर देगा 0.6830 समथिंग. उसको 1 से माइनस करना, एक्चुअली 1 माइनस ये करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कैलसी में आंसर आने के कारण -1 कर रहा हूं, तो मुझे आंसर नेगेटिव मिलेगा. तो मैं नेगेटिव साइन निकाल दे रहा हूं और फिर मैं जो आंसर आया है उसको डिवाइड बाय 0.1 से कर रहा हूं, एंड आई एम गेटिंग द आंसर, फाइनल आंसर एज 3.16986 समथिंग. ओके, इतना आंसर मिल रहा है. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इनटू 2,25,000. सो माय फाइनल आंसर दैट is 7,13,219.73. okay, so this is the present value of that prize money that I am going to receive over 4 years. ठीक है, so 4 years के स्पैन में मुझे जो 2,25,000 मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू खाली 7,13,219.73 का है. आई होप दिस इज क्लियर. तो हमको 2,25,000 को डायरेक्टली 4 टाइम्स मिल रहा है, इसलिए इंटू 4 करके ये नहीं बोलना है कि हमको 9 लाख रुपीज मिलने वाला है. हमको 9 लाख रुपीज नहीं मिलने वाला है. हमको जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू 13,219.73 का है. और उसके अगेंस्ट में हमको वो लॉटरी कंपनी कितना ऑफर कर रहा था, 1 टाइम पेमेंट. आज के दिन 7,50,000 1 टाइम पेमेंट है. सो 1 टाइम पेमेंट जो ऑफर कर रहे हैं वो लोग, वो है 7,50,000. अब बताओ ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा वाला
ऑफर एक्सेप्ट करोगे? So one time payment is 7,50,000. So now dear student, the picture is clear. We will be accepting one time payment. So one time payment is what is been we will be accepting that. ठीक है? Because the present value of 2,25,000 is lower than one time payment. ठीक है? This is when it comes to ordinary annuity. Now the same sum we are going to solve if what will be your decision if the amount is received at the beginning of the year. So ordinary due रहेगा तो ये डिसीजन हमारा सेम रहेगा कि चेंज होगा, दैट वी आर लुकिंग इनटू. ठीक है? सो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला ले रहा हूं. फॉर्मूला फॉर एन्युटी ड्यू, this is equals to 2,25,000. ये पूरा ब्रैकेट में वही सेम स्टफ आएगा. सो पूरा ब्रैकेट में वही आने वाला है. 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 द होल रेज टू 4 years द होल अपॉन 0.1 ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट 1 प्लस यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज आएगा 1 प्लस आर, दैट इज 1 प्लस 0.1. ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एन्युटी ड्यू है. सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है. सो 2,25,000 इनटू ये ब्रैकेट का वैल्यू हमने ऑलरेडी सॉल्व करके निकाला था 3.16986 एंड एडिशनली हमें मल्टीप्लाई करना है 1.1 से. तो चलो जो आंसर आया था उसको 1.1 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमको एन्युटी ड्यू मिलेगा. सो 2,25,000 इंटू 2 लाख इंटू 3.16996 करते हैं इंटू 1.1. सो 2,25,000 इंटू 3.16986. तो आंसर यही सेम आएगा जो प्रेजेंट वैल्यू पहले आया था, इनटू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से तो हमें आंसर मिलेगा 7,84,540.35 is the present value that we are going to get if it is an ordinary annuity due. ठीक है? अब डिसीजन वापस लेते हैं. सो डियर दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू और वन टाइम पेमेंट उनको वो लोग हमको कितना ऑफर कर रहे हैं? सो वन टाइम पेमेंट वो लोग हमको 7,50,000 का ऑफर कर रहे हैं. तो ऐसे केस में उन्होंने पूछा था अपना डिसीजन चेंज होगा क्या? यस, ऐसे केस में अपना डिसीजन चेंज होगा. ऐसे केस में डियर स्टूडेंट्स वो 4 इंस्टॉलमेंट लेना ज्यादा सुटेबल है क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू आपके वन टाइम सेटलमेंट से ज्यादा है. Okay, so this is the where present value का calculation helps us. So understanding present value हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू कहां पे यूज कर रहे हैं. तो जब भी फ्यूचर्स में हमको सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाला है या सीरीज ऑफ रिटर्न्स मिलने वाला है, सीरीज ऑफ कैश फ्लोज मिलने वाला है, तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कभी भी हम कैलकुलेट करेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज. ठीक है? लेट अस फर्दर डू द सम्स विद दिस कॉन्सेप्ट. तो suppose you can pay a car loan EMI of 15,000 per month for the next 3 years. So 15,000 per month for the next 3 years. You know that your car loan has an interest rate of 12%. So this is 12% discounted monthly. ये सब में discounted monthly है. Then what's the amount of car loan you are eligible today? So how much car loan you can take, that we have to find. That means present value of this loan is what we have to find. ठीक है? So again I am going to use the formula for present value. So present value of
ऑर्डिनरी एन्युटी इसीलिए लिया है क्योंकि जब भी कुछ मेंशन नहीं किया, वी विल बी ऑलवेज एज्यूमिंग इट एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। ये हमने पहले वाले पार्ट में भी देखा था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, PMT is equals to 15,000 in this sum, ब्रैकेट में 1 minus 1 upon, now here the calculation will change, 1 plus R, R is 12% given, 12% मतलब 0.12, लेकिन मंथली होने के कारण हमें पता है जब भी मंथली कंपाउंडिंग होता है हम R को डिवाइड बाय 12 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और जो n है उसे हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे इनटू 12, द होल अपॉन R है, R को अगेन 0.12 डिवाइड बाय 12 करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है, मंथली कंपाउंडिंग होने के कारण। सो दिस इज इक्वल्स टू 15,000 इनटू, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले, तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यहां पे आएगा 0.01 डिवाइड करने के बाद, ब्रैकेट क्लोज, 12 3 36, so raised to 36 आएगा, अपॉन दिस विल अगेन बी 0.01, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 15,000 इनटू, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं, सो कैसे सॉल्व करेंगे, सो 1 डिवाइड बाय, इनका टोटल ले लेता हूं डायरेक्टली, 1 डिवाइड बाय 1.01, ये एक बार डिवीजन हो गया, ऐसा मुझे 36 रेज टू 36 है, सो मैं 36 टाइम्स इक्वल्स टू इंसर्ट करूंगा, सो मेरा कैलसी आंसर दे रहा है वो डिवीजन का 0.698924 समथिंग, ठीक है। उसको मैं 1 से माइनस करूंगा, लेकिन आंसर नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस वो आंसर था, लेकिन हमने -1 किया, सो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मैं नेगेटिव साइन निकाल दूंगा और फिर उसको डिवाइड बाय 0.01 से करूंगा, सो इक्वल्स टू, सो माय फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 30.10750 एंड कंटिन्यूड। सो उसको जब मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो हाउ मच लोन अमाउंट आई एम एलिजिबल फॉर, सो आई एम एलिजिबल टुडे फॉर टेकिंग अ लोन ऑफ 4,51,612.58, सो राउंड ऑफ करके इतना लोन मैं लेने के लिए एलिजिबल हूं अगर मैं 15,000 का मंथली इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकूंगा, तो आई एम एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस मच अमाउंट ऑफ लोन टुडे। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। अब इसी को हम हाँ बोलिए मैडम। डाउट है, जब हमने कैलसी में 1 डिवाइड बाय 1.01 किया, सर हाँ। तो वो सिर्फ 1 टाइम होगा ना, और हमें और 35 टाइम्स करना है ऐसा? हाँ, मतलब टोटल 36, ठीक है। ओके। सो वन टाइम वो हो गया और 35 टाइम्स आपने करना है। मैं कैसे करता हूं कैलसी में वो आपका नंबर्स होता है ना, ऊपर 1 टाइम किया, इंसर्ट 2 टाइम किया, तो मैं 38 नंबर मुझे ऊपर दिखेगा ना कैलसी में, तो मैं रुक जाता हूं। ओके, वैसे मैं करता हूं, ठीक है। दैट इज वन वे। मैं आपको उसका दूसरा तरीका भी बताने वाला हूं ना। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो क्या है, मैथमेटिकली ये पूरा ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ऑन कैलकुलेटर इज 1 डिवाइड बाय 1.01
इसको हमको 36 टाइम्स इज इक्वल टू करते जाना है, जैसा हम कर रहे हैं। सो 36 टाइम्स इज इक्वल टू करते जाओ। सो आंसर कितना आएगा 36 टाइम्स। अब मैं चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं कैलसी का ऊपर नंबर देख रहा हूं, मुझे पता है 38 नंबर होने के बाद मुझे रुकना है। ठीक है, अब ये सब होने के बाद, इतना होने के बाद मैं जीटी फंक्शन जो है कैलसी का उसको दबाऊंगा, तो ग्रॉस टोटल का फंक्शन है उसको दबाऊंगा। ओके, सो ग्रॉस टोटल के फंक्शन में मुझे आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली 30.10750। ये डायरेक्ट आंसर मिलेगा अगर मैं ग्रॉस टोटल का फंक्शन को इंसर्ट कर रहा हूं, और उसको मैं 15,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4,51,612 मुझे आंसर मिलेगा। दिस इज वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग इट। ठीक है, हम उसको वापस नेक्स्ट सम्स में प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी सम को हम एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करने का वो चेक करते हैं। सो यहां पे मैंने ऑलरेडी डेटा डाला है, इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी का डेटा। फ्यूचर वैल्यू करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, सो दैट इज जीरो, क्योंकि फ्यूचर में एक बार हमको नहीं मिल रहा है, सिंगल कैश इनफ्लो नहीं है, फ्यूचर में सीरीज ऑफ ये कैश इनफ्लोज है, एंड दैट्स व्हाई फ्यूचर वैल्यू जीरो है। ये फ्यूचर वैल्यू खाली कब लेते हैं, जब सिंगल कैश इनफ्लो रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, पीरियड 3 इयर्स है, एंड अमाउंट ऑफ पीरियडिक पेमेंट्स 15,000 है, एंड कंपाउंडिंग मंथली है। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लेने वाला है, दैट फॉर्मूला इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, सो वी आर गोइंग टू यूज द मेक यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट, रेट बोला है रेट 12, लेकिन कंपाउंडिंग मंथली होने के कारण डिवाइड बाय 12 करेंगे, कॉमा एनपीआर 3 इंटू 12, कॉमा पीएमटी माइनस 15,000। वही सेम तरीके से हम करने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू इज जीरो, सो फ्यूचर वैल्यू जीरो लिया है, और यहां पे वापस टाइप है। अब टाइप को अपने को पता है, व्हेनेवर इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी हम जीरो इंसर्ट करेंगे, एंड व्हेनेवर इट इज एन एन्युटी ड्यू हम 1 इंसर्ट करेंगे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, तो हम जीरो इंसर्ट करेंगे एंड देन एंटर, और देखो आंसर वही है 4,51,612.58। I hope this is clear. This is how you calculate it on an Excel sheet. Okay. Next sum. Mrs. Rani will receive 8,50,000 a year for next 15 years from her trust. If a 7% rate of interest is applied, what is the current value of the future payments if first receipts occurs today? Now this is important, first receipt occurs today, तो ऐसा कभी भी बोला है फर्स्ट रिसिप्ट आज मिल रहा है, उसका मतलब दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज एन एन्युटी ड्यू बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आज ही फर्स्ट रिसिप्ट मिल रहा है। सो दिस इज एन एन्युटी ड्यू वाला सम। ठीक है, जिसमें पीएमटी आपका 8,50,000 है, ओवर 15 ईयर्स मिलने वाला है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। यहाँ पे कंपाउंडिंग कुछ बोला नहीं है, तो कंपाउंडिंग हम एनुअली लेंगे। सो एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला में ले रहा हूं। So this is equals to PMT is 8,50,000 bracket 1 minus 1 upon 1 plus 0.07, the whole raised to n is 15 years, the whole upon 0.07 bracket close into 1 plus 0.07। ठीक है, ये एन्युटी ड्यू में एक्स्ट्रा चीज है जो हमने देखा है। सो 8,50,000 इंटू
चलो कैसा करेंगे, सो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.07 है, 15 है, ठीक है। तो मैंने कैलसी पे आपको जैसा वो सेकंड तरीका बताया था उससे मैं सॉल्व कर रहा हूं। सो 1 डिवाइड बाय 1.07 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जस्ट अ सेकंड, मेरा जीटी ऑलरेडी ऑन है, हाँ एक मिनट। 1 डिवाइड बाय 1.07 इज इक्वल्स टू 1 टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, हो गया 15। और फिर मैं जीटी फंक्शन यूज करूंगा। सो जीटी, तो मुझे डायरेक्टली आंसर मिल रहा है इनटू 9.1079 1 समथिंग, ठीक है, ये ब्रैकेट का आंसर है, एंड द होल इनटू 1.07। चलो, सो लेट अस चेक व्हाट्स द आंसर, फाइनल आंसर। सो इनटू करेंगे 8,50,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1.07 से, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 82,83,647.78. This is the present value of 8,50,000 to be received over a span of 15 years, ठीक है। अब यही सम को हम टेबल मेथड से भी कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं। सो टेबल से हम कैलकुलेट करेंगे, तो टेबल का पहला फॉर्मूला मैं लेता हूं। सो एन्युटी ड्यू का टेबल का फॉर्मूला ये है, सो लेट मी कॉपी दैट फॉर्मूला। दिस इज टेबल का फॉर्मूला। अकॉर्डिंगली PMT इज 8,50,000। अब चलो, हमें पता है कि कौन से टेबल में हमें चेक करना है। सो कौन से टेबल में हमें चेक करना है वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर के टेबल में। सो दिस इज अ टेबल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, उसके टेबल में। सो द परसेंटेज वाज 7% था, 7%, ठीक है, एंड 15 ईयर्स ना, तो 7% था एंड 15 ईयर्स था। सो द आंसर इज 9.1079। टेबल से हमें ये आंसर मिल रहा है। $9.1079 टेबल से भी वही आंसर मिल रहा है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, और इनटू तो हमें एक्स्ट्रा में 1.07 से मल्टीप्लाई करना है। सो टेबल मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली वही आंसर मिलेगा जो हमको फॉर्मूला मेथड से मिल रहा है। सो एग्जाम में अगर टेबल वैल्यू दिया है तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, खाली मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन सॉल्व दिस स्टफ, ठीक है। इसी को हम एक बार एक्सेल में भी देखते हैं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू वाला सम है। सो एन्युटी ड्यू वाला सम को एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करने का वो हम देखते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया है, फ्यूचर वैल्यू इज 0, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, पीरियड इज 15 ईयर्स, अमाउंट ऑफ पेमेंट इज 8,50,000 एंड कंपाउंडेड एनुअली है। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, कॉमा NPR इज 15। यहाँ पे एनुअली होने के कारण हमें डिवाइड किसी से भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, माइनस पीरियडिक पेमेंट इज 8,50,000 ब्रैकेट, फ्यूचर वैल्यू इज 0 ब्रैकेट। हाँ, यहाँ पे खाली याद रखना है, ये एन्युटी ड्यू होने के कारण हम लोग जो इंसर्ट करने वाले हैं वो है नंबर 1 एंड एंटर। So this is 82,83,647.79 जो आंसर हमने फॉर्मूला से और टेबल से भी कैलकुलेट किया था। So this is how this present value is calculated on an Excel sheet. ठीक है, चलो फर्दर
कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे find the present value of an annuity with periodic payment of 2000 for a period of 10 years at an interest rate of 6% discounted semi annually। तो ये डिस्काउंटिंग सेमी एनुअली वाला सम है, तो चलो सॉल्व करते हैं सेमी एनुअली वाला सम। अब यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है कि कभी उसका इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाला है, सो वी विल बी एज्यूमिंग दिस एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का हम फॉर्मूला लेंगे। So this is equals to PMT is 2000, सॉरी ऑर्डिनरी एन्युटी के बदले मैंने एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लिया, तो इतना मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी, सो PMT इज इक्वल्स टू 2000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R इज 6%, 6% मतलब 0.06, लेकिन अगेन इट इज सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली होने के कारण हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और रेस टू 4 है, सॉरी रेस टू n है, n इज 10 ईयर्स, सो 10 को भी इंटू 2 करेंगे, द होल अपॉन 0.06 डिवाइड बाय 2, R को हम 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू व्हेन इट कम्स टू सेमी एनुअल कैलकुलेशन। ठीक है, सो दिस इज 2000 ब्रैकेट में, ये पूरा कैलकुलेशन हमें करना है, तो दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.06 डिवाइड बाय 2 होगा 0.03, द होल अपॉन 20 अपॉन, ये डिवाइड करके आएगा 0.03 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, so this is equals to 2000 bracket 1 minus 1 upon 1.03 the whole raised to 20 the whole upon 0.03। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं बाय यूजिंग GT फंक्शन। so this is going to be 1 divided by 1.03, ये हो गया 1 टाइम, ऐसे मैं 20 टाइम्स लेने वाला हूं। मेरे कैलसी ने जब 1 टाइम लिया तब मेरे कैलसी ने इधर नंबर बताया था, इट इज थर्ड कैलकुलेशन, तो मुझे अगर 20 टाइम्स करना है तो मैं जाऊंगा 22 तक, जब तक कैलसी 22 नंबर नहीं दिखा रहा, तो मैं 22 नंबर आने तक मैं इज इक्वल टू इंसर्ट करते जाऊंगा। सो 0.55367 ऐसा नंबर हमारा लास्ट में आ रहा है जब हम 20 टाइम्स उसको डिवाइड किया। तो उसके बाद मैं GT फंक्शंस का यूज करने वाला हूं, तो मैं GT इंसर्ट करूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर मुझे मिल रहा है 2000 इंटू 14.877474 समथिंग। ठीक है, into 2000, so how much is the present value? Present value of this cash inflow is 29,754.95. this is going to be the present value of this cash inflow। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी को एक बार टेबल से भी कर लेंगे तो टेबल वैल्यू भी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। सो टेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी का टेबल वैल्यू का फॉर्मूला लेंगे। सो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला में इंटू 1 प्लस आर नहीं है, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू कॉपी। चलो इधर ही बाजू में सॉल्व करता हूं टेबल वैल्यू से।
ये फॉर्मूला है. सो अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल्स टू PMT इज 2000 ब्रैकेट में. यहां पे कौन से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर में देखेंगे तो आर को हमने क्या किया है, आर इज 6%, लेकिन 6% को हम डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो आर हमको देखना है 3% के लाइंस में, एंड एन हमें देखना है 10 इयर्स है. सो 10 को इंटू 2 करने वाले हैं, तो एन हमें देखना है 20th रो में. ठीक है. सो थर्ड कॉलम एंड 20th रो हम टेबल में चेक करेंगे. सो थर्ड पर्सन का 3% का कॉलम एंड 20th रो 14.8775. ठीक है. सो 14.8775 आ रहा है, 14.8775. ठीक है. हमारा मल्टीप्लिकेशन भी टोटल वही आ रहा था जो हमने ब्रैकेट का सॉल्व किया था, तो फाइनल आंसर भी हमारा सेम आएगा 29,754.95. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. नेक्स्ट सम. So next, what is the present value of an annuity 2000 per year with the first cash flow received 3 years from today? Now this is an important thing. ये जरा अलग है जो नॉर्मल सम हम सॉल्व कर रहे थे उससे. यहाँ पे क्या बोला है, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ एन एन्युटी, लेकिन फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट हमको एन्युटी का मिलेगा वो मिलेगा 3 years from now, 3 साल के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा. तो आज नहीं मिलने वाला है या ईयर एंड में भी नहीं मिलने वाला है, 3 years के बाद मिलने वाला है. एंड द लास्ट वन रिसीव्ड 8 years from today, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट 8 years के बाद मिलने वाला है. यूज अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%. सो हाउ दिस इज सॉल्व, तो उसके लिए ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट में एक टाइमलाइन यहाँ पे बना के रखा हूं. सो चलो ये कॉन्सेप्ट को टाइमलाइन पे समझते हैं. अभी देखो ये टाइमलाइन में 0 पीरियड इज आर प्रेजेंट पीरियड. ठीक है. 1 year 2 year यहां पे हमको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में हमको कोई भी एन्युटी का वैल्यू नहीं मिल रहा. थर्ड ईयर से हमारा कैश इनफ्लो स्टार्ट हो रहा है. सो थर्ड ईयर में 2000 और कहां तक मिलने वाला है, 8th ईयर तक. तो थर्ड में 2000, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th ईयर में फाइनल 2000 हमें मिलेगा. तो हमें प्रेजेंट वैल्यू आज का कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है ये फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें सीरीज में इन्वेस्टमेंट्स मिलता है. यहां से फर्स्ट ईयर से अगर 2000 स्टार्ट होता था तो डियर स्टूडेंट्स हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज करते थे, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला. और अगर 0 से 2000 स्टार्ट होता था तो हम एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला यूज करते थे. तो देखो हमारे दो फॉर्मूलाज के लिए स्टार्ट होना चाहिए जो 2000 वो या तो 0 पीरियड से स्टार्ट होना चाहिए, यानी आज से स्टार्ट होना चाहिए, या तो 1 साल बाद दैट इज 2000 रुपीज फर्स्ट ईयर से शुरू होना चाहिए, तो ही हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. लेकिन ये केस में ना 0 पीरियड में हमको 2000 रुपया मिल रहा है, ना फर्स्ट ईयर में हमको 2000 रुपया मिल रहा है. हमको जो 2000 रुपीज मिलना स्टार्ट हो रहा है वो डायरेक्टली थर्ड ईयर से. तो फिर इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे, देखो 2 स्टेप में कैलकुलेट करना है. सबसे पहला यहां तक का मैं कैलकुलेशन करूंगा सेकेंड ईयर तक का, और फिर ये बाकी का कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं. सो 2 स्टेप में हमको 0 ईयर तक आना है, प्रेजेंट वैल्यू तक आना है. पहले कैसे करूंगा, तो देखो फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस एन्युटी वाला फॉर्मूला, मैं ये जो सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर उसको टाइम लाइन पे 0 एज्यूम कर रहा हूं. 0 उसको 0 एज्यूम कर रहा हूं ताकि मैं यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकूंगा. तो अगर उसको 0 एज्यूम किया तो ये अगर 0 है तो यहां का प्रेजेंट वैल्यू हम पहले ढूंढते हैं. सो हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0 पीरियड, तो ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6, तो आगे 6 इयर्स में हमको पेमेंट मिल रहा है एट दिस सेकेंड ईयर.
ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे विद द फॉर्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो चलो यहां पे सॉल्व करता है ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लेके। तो ये मैं सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन मैंने टाइम लाइन पे उसको एज्यूम किया कि 0 एज्यूम किया इसको, और यहां पे इसको फिर फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, मैंने टाइम लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर दिया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये मेरे लिए सिक्स्थ हो गया अगर मैंने इसको 0 एज्यूम कर लिया तो। ठीक है, सो उसके हिसाब से मैं अभी फॉर्मूला सेटअप कर सकता हूं। हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला है जहां पे 0 ये साल मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, और फर्स्ट ईयर से मेरा रिसिप्ट होना शुरू हो रहा है अप टू 6 years। So let me calculate the present value. So 2000 ब्रैकेट में 1 plus 1 upon 1 plus R. R is 8%, तो 0.08, the whole raised to n. N is 6 years, तो यहां से ये 0 कंसिडर करूंगा तो आगे 6 years है, so n is 6 years, the whole upon R. R is 0.08। सर बोलिए मैडम। वो 1 माइनस चाहिए। एक मिनट, 1 माइनस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2000 ब्रैकेट में 1 प्लस वो सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 द होल रेज टू 6 द होल अपॉन 0.08। चलो वापस कैलसी पे करते हैं। सो 1 डिवाइड बाय 1.08 6 रेज टू है, ठीक है। सो 0.0630 तक हमें रुकना है, और फिर जीटी फंक्शन इंसर्ट करूंगा। सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2000 इनटू ब्रैकेट का वैल्यू मुझे मिल रहा है 4.62287 समथिंग, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2000 करूंगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 9245.76, ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एज पर द फॉर्मूला। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट वैल्यू हमारा फाइनल प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू कौन से ईयर का जो हमको मिला है प्रेजेंट वैल्यू, तो ये प्रेजेंट वैल्यू मिला है हमको ईयर 2 का, क्योंकि हमने टाइम लाइन को थोड़ा शिफ्ट कर दिया था। सो 9245.76 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ईयर 2। तो ईयर 2 के नीचे लिखता हूं, ईयर 2 का प्रेजेंट वैल्यू मिला 9245 है ना, 9245.76 इस सेकेंड ईयर का हमें प्रेजेंट वैल्यू मिला। लेकिन हमको तो यहां तक पहुंचना है, हमको तो 0 पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखो अब यहां पे हम कैसा 0 पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू तक वापस पहुंचेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो मिल नहीं रहा है, हमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर का वैल्यू पता है, दैट इज 9245.76। तो 0 पीरियड के लिए ये जो सेकेंड ईयर में जो वैल्यू है उसको हम कंसिडर करेंगे फ्यूचर वैल्यू। तो ये एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला में हमने ये कैलकुलेट किया प्रेजेंट वैल्यू के स्टफ लेके, ठीक है। लेकिन फॉर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 0, इसी चीज को हमको फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये 2 साल के बाद मिलने वाला है। तो आज के पीरियड के लिए ये जो 9245.76 2 साल के बाद मिलने वाला है वो फ्यूचर वैल्यू होगा। तो फिर आज का प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? और ये एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंगल कैश इनफ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको सीरीज में नहीं मिल रहा है, एक ही टाइम पे आपने कंसिडर किया 9245.76 मिलने वाला है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में हमको जब फॉर्मूला यूज करना है, तब हम सेकेंड स्टेप का फॉर्मूला यूज करेंगे नॉर्मल अपना प्रेजेंट वैल्यू का सिंगल कैश फ्लो वाला फॉर्मूला। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस
आर दी होल रेस टू एन, ये है हमारा फॉर्मूला. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू. अब कितना है फ्यूचर वैल्यू? सो दिस इज टू बी कंसिडर्ड एज फ्यूचर वैल्यू एज फार एज जीरो पीरियड इज कंसर्न. तो आएगा 9245.76 फ्यूचर वैल्यू कंसिडर करेंगे. द होल अपॉन 1 प्लस 0.8 सॉरी 0.08 ना. .08. चलो इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू, बोलो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू का आंसर? डायरेक्टली डिवाइड करके एंड रेस टू करना है. रेस टू यहां से कितना साल बाकी है? सो हम जीरो पीरियड का कंसिडर करें और हमने सेकेंड पीरियड का वैल्यू कैलकुलेट किया था. सो सेकेंड जीरो पीरियड से ये सेकेंड पीरियड 2 साल हो रहा है. सो रेस टू 2 करने वाले, यहाँ पे 2 साल हो गया पीरियड. सो रेस टू 2 करेंगे. सो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है जरा चेक करते हैं. तो 1 डिवाइड बाय 1.08, ये एक टाइम हो गया और हमको 2 टाइम डिवाइड करना है. सो फाइनली इट इज 9245.76 इंटू जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है वो 0.8573 का आ रहा है. तो उससे मल्टीप्लाई करते हुए 9245.76 को, एंड हेंस द प्रेजेंट वैल्यू एट 0 ईयर इज 7926.75. ये आपका आज के दिन का प्रेजेंट वैल्यू एट 0 ईयर. तो याद रखना, जब भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है या फर्स्ट एन्युटी रिसिप्ट जो है वो डिले होता है, बराबर है. जीरो पीरियड में मिला तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आज मिला तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1 साल के बाद मिला तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. हमारे पास ये दोनों का फॉर्मूला है. लेकिन अगर उससे ज्यादा पीरियड के बाद मिल रहा है, जैसा ये सब में थर्ड ईयर से मिलना चालू हुआ, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते. तो हमको 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एक बार हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और सेकेंड टाइम हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ऐसे 2 फॉर्मूलाज यूज करके फिर ही हम जीरो पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है. सो दिस इज द सम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप इट इज क्लियर. हाँ बोलिए मैडम. और सर हमने जैसे क्वेश्चन में सेकेंड ईयर को अज्यूम किया है, तो हम थर्ड ईयर को अज्यूम करके एक्चुअली का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते. किसको मैडम? थर्ड ईयर को एज्यूम करके एन्युटी ड्यू लाइक बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके इंस्टॉलमेंट्स ऐसे मैडम थर्ड अज्यूम नहीं ईयर कर को सकते. एन्युटी अगर ड्यू कंसिडर करोगे आप, तभी भी आप वही सेम आंसर्स पे जाओगे. तो इसको अगर आप जीरो पीरियड कंसिडर किया, एन्युटी ड्यू कंसिडर किया थर्ड ईयर को, बराबर है, तो आप ये एज्यूम करो कि जीरो पीरियड से आपको शुरू हो रहा है. तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2, हाँ सर. ये 3, ये 4, ये 5. लेकिन इतना आप गलती क्या करोगे पता है? आपको एक 9th कॉलम भी करके उसको 6th ईयर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि एन्युटी ड्यू में जीरो पीरियड में जब आपको मिलता है तो याद रखना एक एक्स्ट्रा पीरियड रहता है जो ब्लैंक जाता है. तो आप गलती क्या करोगे पता है? 8 तक जाके रुक जाओगे. ठीक है. सो एन्युटी ड्यू में आपको एक एक्स्ट्रा ईयर और उसको जीरो कंसिडर करना पड़ेगा. यानी आप यहां से कंसिडर करोगे एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला, तो आपको 6 ईयर से कंसिडर करना है. याद रखना आगे. क्लियर? ठीक है जी. थैंक यू. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि ऐसे समय एन्युटी ड्यू ना कंसिडर करो, ताकि हम गलती ना कर सको. क्योंकि क्या होगा, आपने अगर इसको फर्स्ट ईयर कंसिडर किया, जैसा मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको, अगर आपने इसको 0 ईयर कंसिडर किया तो आप जाके यहां तक रुक जाओगे. तो आप कितना ईयर्स चेक करोगे? देखो ये हो गया 1 ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ. तो आप 5 साल अगर लोगे सो थिंग्स विल गो रॉन्ग. ओके. आपको यहां पे और एक ईयर में जाना है और 6 ईयर्स लेना है एन्युटी ड्यू के लिए भी. क्लियर? ओके सर. यस सर. ठीक है. चलो, तो वो सेम सम, सिमिलर काइंड ऑफ सम और एक दिया है ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए. उसका टाइमलाइन इधर आ गया मेरा. ठीक है. चलो,
चेक करते हैं। अ 10-year एन्यूटी, तो 10-year एन्यूटी इसलिए टाइम लाइन पे मैंने 10 years प्लॉट किया है। देखो pays 9,000 4 times a year, so 9,000 4 times a year पे हो रहा है। ये 4 times a year 9,000 पे हो रहा है, उसका मतलब इट इज अ क्वार्टरली थिंग, बराबर है। सो ये क्वार्टरली वाला सम है। इन अ ईयर द फर्स्ट ऑफ 9,000 विल बी पेड 5 years फ्रॉम नाउ। अभी ये भी वैसा ही टाइप का सम आया जहां पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाला है 5 years फ्रॉम नाउ। तो देखो मैं 5th ईयर पे प्लॉट किया है और उसके आगे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि उसके आगे हर साल नहीं मिल रहा है, साल में कितनी बार मिल रहा है यहां पे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट एवरी ईयर, आई एम गोइंग टू गेट इट क्वार्टरली, क्वार्टरली मिलने वाला है ना मुझे। सो साल में 4 टाइम मिल रहा है मुझे। ओके, अप टू 10 years मुझे साल में, यानी 5th ईयर में मुझे फर्स्ट टाइम मिलेगा। सो 5th ईयर में मुझे 4 बार मिलेगा, 5 to 6 years के बीच में, 6 to 7 ईयर के बीच में 4 बार, 7 to 8 ईयर के बीच में 4 बार, ऐसा मुझे 10th ईयर तक 4 टाइम साल में 9,000 रुपीज मिलते जाएगा क्योंकि ये क्वार्टरली रिसिप्ट है। ठीक है। इफ द स्टेटेड इंटरेस्ट रेट इज 8% डिस्काउंटेड क्वार्टरली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। अब हमें यहां पे पहुंचना है। अब अगेन वही सेम प्रॉब्लम है, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला एन्युटी का कब यूज कर सकता है, जब हमें 0 पीरियड में रिसिप्ट हो रहा है या फर्स्ट ईयर में हो रहा है। हमें दोनों भी पीरियड में रिसिप्ट नहीं हो रहा है, हमें रिसिप्ट डायरेक्ट 5th पीरियड में हो रहा है। तो वापस टाइम लाइन को शिफ्ट करता है। समझो 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। इसको हमने समझो 0 पीरियड कंसिडर किया, ठीक है, ये 4th को हमने 0 पीरियड कंसिडर किया। तो यहां से कितना टाइम पीरियड हो रहा है, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year एंड 6 years हो रहा है, और क्वार्टरली रिसिप्ट है 9,000 का। तो मैं ऑर्डिनरी ड्यू वाला, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं एट दिस पीरियड, 0 पीरियड। ओके, और मैंने आपको लास्ट सम में समझाया कि ऐसे टाइम पे आप ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू वाला फॉर्मूला यूज करने मत जाओ, आप खुद को कंफ्यूज करके लोगे। आप ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही फॉर्मूला यूज करो। दोनों फॉर्मूला से आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन आप ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, चलो, तो यहां पे पीएमटी इज 9,000 ब्रैकेट 1 प्लस, वापस मैं प्लस लिखने जा रहा हूं, 1 माइनस है वो, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर। आर इज कितना बोला है, 8%। 8% इज अगेन 0.08, लेकिन यहां पे क्वार्टरली आपको 9,000 रुपीज मिलने वाला है, इसलिए आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 4 करोगे। द होल रेस टू एन, कितना ये हमने कैलकुलेट किया था, इसको अगर 0 कंसिडर करेंगे तो यहां से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 years हो रहा है 4th पीरियड से। सो एन इज 6, लेकिन क्वार्टरली रिसिप्ट होने के कारण इंटू 4 करोगे, द होल अपॉन 0.08 डिवाइड बाय 4। वही सेम सम है, सिमिलर काइंड ऑफ सम है, लेकिन यहां पे हम क्वार्टरली एज्यूम किया है। हमको 9,000 रुपीज 5th ईयर से क्वार्टरली मिलते जाएगा। सो 9,000, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, यह आएगा 0.02 डिवाइड करके, ब्रैकेट क्लोज, द होल रेस टू 24 अपॉन 0.02। ठीक है, सो मैं डायरेक्ट कैलसी पे ले रहा हूं, 9,000 इंटू, चलो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1.02 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 टाइम, टाइम करेंगे तो 0.62172 कुछ आ रहा है, और उसको जीटी फंक्शन ले रहा हूं। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 18.9139 समथिंग, इंटू 9,000 करेंगे। सो द आंसर इज कमिंग एज 1,70,000
225.33 ये आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, ये कौन से ईयर तक का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया? सो टाइमलाइन पे अगर चेक करेंगे तो ये 4th ईयर का, यहाँ पे 0 कंसिडर किया। सो ये 4th ईयर का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। सो 4th ईयर का वैल्यू हमको मिल रहा है 1,70,225.33। तो आज का वैल्यू कितना? तो यहाँ पे ये सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जहां पे फ्यूचर वैल्यू हम 1,70,225.33 कंसिडर करने वाले हैं। और कितना नंबर ऑफ ईयर है जरा चेक करो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। तो 4th ईयर का फ्यूचर वैल्यू है। सो 4 ईयर्स का पीरियड हमें कंसिडर करना है। सो चलो नॉर्मल फॉर्मूला लेता हूं इधर। सो नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर द होल रेज टू n। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1,70,225 इंटू, आपको याद रहेगा मैं अलग से लिखता था इसको, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर इज 0.08। अब यहां पे वापस याद रखना है ये कंपाउंडिंग वाला सम है, तो डिवाइड बाय 4 होगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग होने के कारण डिवाइड बाय 4 होने वाला है। ये सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला में भी डिवाइड बाय 4 होगा, क्योंकि अपना जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो क्वार्टरली हो रहा है, इसीलिए। इनटू 4 इयर्स हमने स्पैन कैलकुलेट किया था, लेकिन 4 को भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। So this is equals to 1,70,225.33 इंटू, चलो ये पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड करके ऐड करके लिखता हूं, तो दिस विल बी 0.2, 1.02 द होल रेज टू 16। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 1 डिवाइड बाय 1.02 16 रेज टू 16 है, तो इज इक्वल टू 16 टाइम लेंगे। तो आंसर आ रहा है इसका 1,70,225.33 इंटू 0.7284 समथिंग। चलो मल्टीप्लाई करता हूं, इंटू 1,70,225.33 करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आ रहा है 1,23,999। मतलब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो आ रहा है 1,24,999 था, तो मैंने उसको राउंड ऑफ किया और 1,24,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकाला आज के दिन। ठीक है, सो टाइम लाइन पे उसको मैं बताता हूं एक बार। सो डियर स्टूडेंट, द प्रेजेंट वैल्यू एज ऑन टुडे इज 1,24,000। तो आपको जो 9,000 रुपया 5th ईयर से 10th ईयर तक क्वार्टरली मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 1,24,000 का है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, Mr. Salman has received a job offer from a large investment bank as an accountant. His base annual salary will be rupees 10 lakhs. So his salary is 10 lakh constant to the date of retirement. ठीक है. He will receive his first annual salary payment 1 year from the day he begins to work. 1 year from the day he begins to work का मतलब हमें यहाँ पे कंसिडर करना है दिस इज ऑर्डिनरी एन्युटी वाला सम, तो 10 lakh 1 year from now. In addition, he will get an immediate rupees 2 lakh bonus for joining the company. Immediate मतलब ये 2 lakh rupees 0 पीरियड में उसको मिल रहा है। ठीक है, Mr. Salman is expected to work for 25 years. So 25 years का टाइम स्पैन है. What is the present value of the offer
if the discount rate is 12%. ठीक है, so we have to calculate present value of this offer. Now dear, so offer consists of two things. One is salary component जो 10 लाख रुपीस का है और वो कंटिन्यूअसली आपको मिलते जाने वाला है, यानी सीरीज में मिल रहा है आपको फ्यूचर में एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब ये ऑर्डिनरी है. सो इसका हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 10 लाख रुपीस का ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूला से. और एक कंपोनेंट जो आपको मिल रहा है वो है बोनस. अब बोनस जो आपको वो लोग दे रहे हैं वो इमीडिएटली दे रहे हैं और वो वन टाइम ही दे रहे हैं. वो आपको आज ही दे रहे हैं 2 लाख रुपीस का बोनस, 0 पीरियड में दे रहे हैं और उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे. तो दैट इज बोनस इज नॉट कंटिन्यू. सो दिस इज नॉट अ सीरीज ऑफ पेमेंट, दिस इज वन टाइम पेमेंट है. और जो आपको कब मिल रहा है, जो आपको आज मिल रहा है, यानी टुडे यू आर रिसीविंग दैट. इफ यू आर रिसीविंग द ऑफर देन आज आपको ये बोनस मिलेगा जैसे ऑफर रिसीव करोगे. ठीक है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि आज मिलने वाला है, इसलिए इसका प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख का आज का प्रेजेंट वैल्यू तो 2 लाख ही रहेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमें ये बोनस तो लेना ही नहीं है फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि वो आज ही मिल रहा है. हमें खाली ये सैलरी कंपोनेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो 1 साल के बाद मिलने शुरू हो रहा है और 25 इयर्स तक मिलने वाला है. तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, सो दिस इज दिस सम ऑल अबाउट. ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला फॉर्मूला लेता हूं. सैलरी कंपोनेंट खाली लेना है, तो इसीलिए मैं खाली 10 लाख रुपीस लूंगा. वन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, ये कोई कंपाउंडिंग सेमी एनुअली क्वार्टरली कुछ नहीं है, तो एनुअल कंपाउंडिंग है. डिस्काउंट रेट 12%, तो 0.12 एंड n इज रेज टू 25, the whole upon 0.12 bracket close. So 10 lakhs into, ये पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है जरा चेक करते हैं. So 1 डिवाइड बाय 1.12 ये आएगा 1 टाइम, ऐसा मुझे 25 टाइम्स करना है. ठीक है, तो लास्ट में आंसर आ रहा है 0.0588. मैं जीटी फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो मुझे डायरेक्टली ब्रैकेट का वैल्यू मिलेगा 7.843139 इंटू 10 lakhs. सो दैट इज इक्वल्स टू 78 lakhs 43,139 rupees. ठीक है, सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी दैट आई एम गोइंग टू गेट. यानी 10-10 लाख का सैलरी जो 25 साल के लिए मिलने वाला है एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 12%, उसका आज का वैल्यू खाली 78,43,139 का है. ठीक है, अब हाउ मच इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू रिसीव टुडे. तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैलरी हमने कैलकुलेट किया, ये उसको आज मिलने वाला है. और ये कितना हमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया 78,43,139. इतना उसको प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन सैलरी का मिलने का, जो 25 इयर्स ओवर द 25 इयर्स उसको मिलने वाला, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू इतना है. एंड देन ही इज ऑल्सो गोइंग टू गेट बोनस. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोनस आज ही उसको मिल रहा है, तो बोनस का प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख का बोनस है, तो आज का उसका प्रेजेंट वैल्यू भी 2 लाख रुपए रहेगा. So let us add 2 lakh to this present stuff. तो टोटल वैल्यू उसको कितना मिलने वाला है, 80,43,139 का उसको टोटल वैल्यू आज के दिन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कंपनी को ज्वाइन करने वाला है. तो अगर ये वैल्यू उसको ज्यादा लगा तो वो ज्वाइन करेगा, अगर ये वैल्यू ओवर द इयर्स में उसको कम लगा, ही मे नॉट ज्वाइन द कंपनी. ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन.
आई होप दिस इज क्लियर। तो ये दो कंपोनेंट वाला कैलकुलेशन था और ऊपर का जो कैलकुलेशन हमने सीखा वो दो कॉन्सेप्ट्स वाला कैलकुलेशन था, ठीक है। एंड द लास्ट सम, मिस्टर बाला हैज बोरोड अ लोन ऑफ ₹5 लाख। सो 5 लाख का लोन मिस्टर बाला ने बोरो किया है, विच इज रीपेएबल इन 12 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, द फर्स्ट बीन पेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। दिस इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी वाला सम। The rate of interest chargeable on the loan is 8% per annum compounded. Compounded खाली बोला है तो we will be assuming it compounded annually. How much of the equal annual installment payable to amortize the said loan? तो यहाँ पे देखो, this is nothing but your EMI calculation that we are going to learn. लेकिन EMI नहीं बोलूंगा exactly क्योंकि ये monthly नहीं है, ये annual payment करना है। तो यहाँ पे EMI इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, लेकिन हम एनुअल पेमेंट्स जो हमको कैलकुलेट कर रहे पे करना है लोन के अगेंस्ट में, दैट वी आर कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑर्डिनरी एन्युटी वाला सम फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल्स टू PMT ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R the whole raised to n upon r। अब देखो आपका लोन का EMI अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे EMI नहीं है, यहाँ पे एनुअल इंस्टॉलमेंट है, बट EMI इज ऑल्सो कैलकुलेटेड विद द सेम कॉन्सेप्ट। तो देखो 5 लाख रुपीस का लोन हम आज बोरो कर रहे हैं, तो ये केस में हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑलरेडी पता है। सो 5 लाख रुपीस इज द प्रेजेंट वैल्यू जो हम लोन आज लेने वाला है। सो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज इक्वल्स टू हमको इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है ओवर द इयर्स वो हमको पता नहीं, यानी हमारा PMT मिसिंग है ये सम में। तो याद रखना PMT इज मिसिंग इन दिस सम। ब्रैकेट में 1 प्लस, लेट मी राइट डाउन द होल थिंग, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 1 plus R. R is 0.08 and 12 annual installment बोला है, so 12 the whole upon 0.08. I hope this is clear. खाली इतना ही फर्क है कि जब EMI कैलकुलेट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट अगर कैलकुलेट करने बोलते थे तो हम क्या करते थे, ये n को इंटू 12 करते थे और r को डिवाइड बाय 12 करते थे। यहाँ पे भी डिवाइड बाय 12 करते थे। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ EMI इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तो लोन का अमाउंट इज द प्रेजेंट वैल्यू एंड वी हैव टू कैलकुलेट PMT इन दिस सम। सो दिस इज इक्वल्स टू 5 लाख इज इक्वल्स टू PMT, और ये ब्रैकेट को मैं सॉल्व करता हूं। सो ब्रैकेट का डायरेक्ट आंसर मैं कैलकुलेट करके लिखता हूं, 1 डिवाइड बाय 1.08 इज इक्वल्स टू 12 रेज टू 12 है नीचे, सो 12 टाइम्स इंसर्ट कर रहा हूं इज इक्वल्स टू को, एंड देन GT फंक्शन ले रहा हूं ताकि डायरेक्टली मुझे इसका आंसर मिलेगा। सो इसका आंसर आ रहा है 7.53608, ओके, एंड कंटिन्यूड। तो ये क्या करेंगे, PMT कैलकुलेट करने के लिए हमेशा जब हमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होता था मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे ये चीज इधर जाके डिवाइड होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी PMT इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, सो रेगुलर पेमेंट्स आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 7.53608। चलो इससे डिवाइड करते हैं, 5 लाख डिवाइड बाय 7.53608, तो कितना आ रहा है फाइनल आंसर। सो आंसर आ रहा है 66,347.50। सो डियर स्टूडेंट्स, इतने का आपका रेगुलर ईयरली पेमेंट आएगा अगर आपने आज 5 लाख का लोन लिया तो प्रेजेंट लोन हमको पता है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, और हमको सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स कैलकुलेट करना था। सो दिस इज द EMI वैल्यू, या EMI इन द सेंस दिस इज द
month yearly installments value that you have to pay. I hope this is clear. This is reverse calculation वाला sum जो हमने किया था, और इसी तरीके से आपके EMIs भी कैलकुलेट होता है. खाली डिफरेंस मैंने जैसे बोला, यहाँ पे R को हमने कुछ डिवाइड नहीं किया था, EMIs मंथली इंस्टॉलमेंट बोलेंगे तो हमको R डिवाइड बाय 12 करना और N को into 12 करना है, अदरवाइज द फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन सेम.